बेसिक प्रॉपर्टीज आप देखते हैं. कोलोइडल सॉल्यूशन, NaCl in water, NaCl in water. True solution, मतलब if you dissolve in water, if you dissolve NaCl in water, it will form a homogeneous mixture of NaCl in water. If you take a portion from that solution, you will find random portion of the solution, you will find the concentration is same in all around. but जैसे sand in water या mud in water देखोगे तो that is not forming homogeneous mixture. Between two extremes, true solution and suspension, a number of solutions can be formed called colloidal solution. तो true solution homogeneous है, heterogeneous में आपका colloidal और suspension होती है, but that depends on the size. जब solute के particles 1 nanometer से कम होते हैं, those are forming homogeneous mixture. अगर suspension का range देखेंगे तो 1000 nanometer से ज्यादा, तो colloidal का range क्या हो गया 1 to 1000 nanometer. That is the size. तो concentration of any portion the solution is not same in heterogeneous. मतलब पानी और नमक के मिक्सचर को आप कहीं से उठाए पानी चम्मच से कहीं से उठा लो आप, concentration will be same. But colloidal में ऐसा नहीं होता. तो colloidal कोई टाइप नहीं है. colloidal prepared कैसे होगा depending on the size of particles. जैसा size of particles रहेगा उसके according वो solution ready होगा. Not a type of substance but a state of substance which depends on the size of particles which is present in a medium. Colloidal solution is two phase heterogeneous system. जैसे solution भी क्या होती है, solid और solvent होता है, यहाँ पे भी. अच्छा देखो अब relate करते हैं. Normal solution में solid और solvent होता है. Adsorption में हमने क्या पढ़ा था, adsorbate and adsorbent पढ़ा था. यहाँ भी similar to that there are two sections. One will be dissolved in the other. In two phase heterogeneous system in which one phase, dispersed phase dp, and is dispersed as very fine particles 1 to 1000 nanometer. In another phase, dispersion medium dm. तो यहाँ पे dp और dm हो गई. True solution में solute solvent, colloidal में dp dm, adsorption में adsorbate और adsorbent कंपेयर करने के लिए. True solution में solute और solvent की साइज ऑलमोस्ट क्या होती है, सेम ही रहती है ना. सॉल्वेंट जो सॉल्वेंट होता है हमारे ट्रू सॉल्यूशन में वही डीएम की तरह बिहेव करता है कोलोइडल में, बस डीपी की साइज अलग अलग होती है. तो डीपी की साइज 1 to 1000 नैनोमीटर. इफ इट इज लेस देन 1 नैनोमीटर दैट इज ट्रू सॉल्यूशन. ठीक है. एयर आपका डिस्पर्सन मीडियम है. एयर में डस्ट पार्टिकल्स मूव करते हैं. डस्ट पार्टिकल्स आर सॉलिड पार्टिकल्स. डीपी DP and DM both can't be gases because gases form homogeneous mixture. Because gases form homogeneous mixture. Dispersion of a gas into another gas is always considered to be a true solution. It means gaseous mixture is always homogeneous. Therefore, two gases can't mix to form colloidal. कभी भी फॉर्म नहीं कर सकते. लेकिन गैस को छोड़ दिया, एक गैस दूसरा लिक्विड सॉलिड हो सकता है. DP present in small proportion, DM normally in large quantity. साइज क्या है 1 नैनोमीटर से कम. ट्रू सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों की साइज छोटी होती है. सोल SOL स्पेशल नाम दे रहे हैं कोलोइडल का. The colloidal solution has fluid-like appearance. It is called sol. For colloidal solution to be sol, DM will be a liquid or gas. अगर DM liquid है, dispersion medium liquid है, जिसके अंदर हम solid जैसा particle, DP जैसा particle dissolve कर रहे हैं, उस पर अगर fluid-like property होगी, उसको उस system को sol करता है. तो water अगर है DM, तो नाम है hydrosol. Alcohol है तो alcohol, benzene तो benzosol, gas है तो aerosol. Basically sol word use करते हैं तब जब DM में DM is dissolved in a DP. DP is dissolved in a DM. DM will be having what? Movability, fluid-like property. Comparison of properties. देखिए, properties देख लेते हैं पहले कौन कौन से हैं. तीनों की, suspension, colloidal, true solution की nature, particle size, effect of gravity, visibility, flow through parchment paper. Parchment paper मतलब एक तरह का filter की तरह यूज कर रहे हैं इसको. Appearance, Brownian movement,
फिल्ट्रेशन, इलेक्ट्रोफोरेसिस, नया टर्म मिला आपको, इलेक्ट्रोफोरेसिस। टिंडल इफेक्ट, नया टर्म मिला। टिंडल इफेक्ट सुना हो पहले? टिंडल इफेक्ट पढ़े हैं आप लोग? टिंडल इफेक्ट पहले पढ़े हैं? नो सर। अच्छा ठीक, देखिए वन बाय वन। ट्रू सॉल्यूशन क्या होती है उसका? होमोजेनस। कोलोइडल क्या होगा? हेट्रोजेनस। में तो और बड़े पार्टिकल्स होते हैं, वो भी हेट्रोजेनस पार्टिकल्स। सिंपल एंड थिन मॉलिक्यूल्स। कोलोइडल में either a macromolecule because it is more than 1 nanometer, less than 1000 nanometer, size of molecules are relatively higher, तो साइज बड़ी होती है। या प्रोटीन का मॉलिक्यूल 15,000 मोलर मास से ज्यादा होता है, प्रोटीन का एक ही मॉलिक्यूल बहुत बड़ा होता है। लिखा either a macromolecule, तो either you take a very big molecule or take aggregate of molecules, वे बहुत सारे पार्टिकल जुड़ के एक बड़ा पार्टिकल बन जाएंगे। हेट्रोजेनस में लार्ज कलेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद सिमिलर साइज, बोल चुके हैं। इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, जैसे इफ यू डिसॉल्व सॉल्ट इनटू वाटर तो वो डिसॉल्व हो जाती है, सेटल डाउन नहीं होता, सॉल्ट नीचे नहीं बैठता, इट डज नॉट सेटल इन सेंट्रीफ्यूज, मतलब इफ यू यूज अ सेंट्रीफ्यूज देन इट कैन सेटल डाउन, उसमें फ्लोट ही करते हैं। सस्पेंशन में सेटल अंडर ग्रेविटी, छोड़ देंगे आप तो सैंड पार्टिकल्स थोड़ी देर के बाद सरफेस पे, सॉरी बॉटम पे बैठ जाएंगे। विजिबिलिटी, इनविजिबल इवन अंडर पावरफुल माइक्रोस्कोप, particles invisible under simple microscope but visible under powerful microscope। सस्पेंशन में विजिबल बाय नेकेड आई, अब देख सकते हैं। मिट्टी और पानी का मिक्सचर देखिए, देखते ही हैं। फ्लो थ्रू parchment paper, readily pass, slowly pass and part does not pass। parchment paper is behaving like filter paper made of animal skin। appearance ट्रांसपेरेंट होती है, वाटर और सॉल्ट का जो सॉल्यूशन होता है वो ट्रांसपेरेंट, जनरली ट्रांसपेरेंट बट मे शो ट्रांसलूसेंट प्रॉपर्टी। हेजी टू ओपेक, मतलब नहीं दिखता। टर्बिड वर्ड यूज करते हैं, टर्बिड मतलब गंदा, पानी गंदा हो जाए तो दिखेगी नहीं आर पार। नेक्स्ट है ब्राउनियम मूवमेंट, नॉट ऑब्जर्व इन a true solution, possible and observed in। ये सब स्पेशल प्रॉपर्टीज है, ब्राउनियम मोशन, इलेक्ट्रोफोरेसिस, टिंडल इफेक्ट, ये सब प्रॉपर्टीज है। may be possible with very fine suspension particles। filtration can't be filtered by ordinary or ultra filter paper, not by ordinary but filtered by ultra filter paper। अल्ट्रा फिल्टर पेपर से हम लोग उसको हम लोग फिल्टर कर सकते हैं। पोर साइज इज रिड्यूस्ड, नॉर्मल फिल्टर पेपर से पास हो जाएगी, थोड़ा छोटा कर देंगे पोर साइज को तो नहीं पास हो पाएगी। डज नॉट शो, पॉसिबल बाय ऑर्डिनरी फिल्ट्रेशन, मतलब उसको हम लोग फिल्टर कर सकते हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस, एक्सप्लेन द एग्जिस्टेंस ऑफ चार्ज ऑन डीपी पार्टिकल्स। ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रो मतलब चार्ज से रिलेटेड है। When you prepare a colloidal solution, we have to dissolve dp into dm। if it is showing electrophoresis property, it means there should be a charge on the particles of dp। dp के ऊपर चार्ज प्रेजेंट है। doesn't show, can show, doesn't show। can show क्यों लिखा है कि कुछ केसेस में नहीं भी हो सकते, बट कोलोइडल की प्रॉपर्टीज के अंदर, कैटेगरी के अंदर इलेक्ट्रोफोरेसिस आएगी। टिंडल इफेक्ट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, does not show dp scatter light। Tyndall effect may be observed by suspension। conditions for Tyndall effect, Sigmondi basically scientist है, conditions याद कीजिए। Tyndall effect का मतलब scattering of light, light को scatter करने की property। the diameter of dp particle is not much smaller than the wavelength of light used। the refractive index of dp and dm differ great in magnitude। दोनों लिक्विड भी हो सकते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप जानते हैं, म्यू से डिनोट करते हैं हम लोग, तो उसमें डिफरेंस ज्यादा होनी चाहिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में। और साइज ऑफ डीपी पार्टिकल्स मच नॉट मच स्मॉलर देन वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज। जो लाइट आप यूज कर रहे हैं टेंडल इफेक्ट के लिए, स्कैटरिंग ऑफ लाइट एक्सपेरिमेंट के लिए, तो उसमें डायमीटर ऑफ डीपी पार्टिकल शुड नॉट बी मच स्मॉलर देन वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड। ये दो कंडीशंस हैं। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ये भी यहीं देख लीजिए। व्हाट इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन? अल्ट्रा फिल्टर पेपर बनाते कैसे हैं? तो नॉर्मल फिल्टर पेपर जो मार्केट में मिलता है, जो यूज करते हैं लैब में, उससे अल्ट्रा फिल्टर पेपर बनाते कैसे हैं?
The pores of filter paper can be reduced in size by impregnating with collodion solution to stop the flow of DP particles. अब फिल्टर पेपर है, मान लीजिए कुछ फिल्टर पेपर है, उसमें पोर साइज है, उसके पोर साइज को छोटा करना है। इस फिल्टर पेपर को हम डिप कर देते हैं कोलोडियन सॉल्यूशन। डिप करने से क्या होगा, जो पोर साइज है चारों तरफ कुछ पार्टिकल्स आ जाते हैं, तो कवर करने लग जाता है जगह को। इफ इट इज ट्राइंग टू कवर द स्पेस, it will try to reduce the size of pores. The pores of filter paper can be reduced in size by impregnating with collodion solution to stop the flow of DP particle. DP particle की size relatively बड़ी होती है। अगर मैं pore size छोटा कर दूं, तो DP के particles पास नहीं हो पाएंगे। अब आपको ये दोनों पॉइंट मैं अभी याद करने के लिए कहूंगा, इसलिए मैंने पहले मेंशन कर लिया है। तीनों पॉइंट, इलेक्ट्रोफोरेसिस से हम एग्जिस्टेंस ऑफ चार्ज एक्सप्लेन करते हैं। टिंडल इफेक्ट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, दो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। फिर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करते कैसे है, तो अल्ट्रा फिल्टर बनाते कैसे। इट इज 4% सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रोसेल्यूलोज इन अ मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड ईथर। An ultra filter paper may be prepared by soaking the filter paper in a collodion. Collodion is a composition of 4% solution of nitrocellulose in the mixture of ether and alcohol. Hardening by formaldehyde and then finally drying it. Ultrafiltration is a slow process. To speed up the process, pressure or suction is applied. तो याद करने वाली चीजें क्या है इसमें? Condition for Tyndall effect है. Diameter of DP particles is not much smaller than the wavelength of light. Second is refractive index has a large difference between the DP and DA. Second point, ultrafiltration को प्रिपेयर करने के लिए हम क्या करते हैं? हम नॉर्मल फिल्टर पेपर को सोक करते हैं कोलोडियन सॉल्यूशन में, फिर उसको हार्ड करते हैं। सोक करेंगे मतलब जो फिल्टर पेपर है वो वेट हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगा। उसको हार्ड करने के लिए वी यूज फॉर्मल्डिहाइड एंड देन फाइनली ड्राइड। तो उसकी जो पोर साइज है वो स्मॉल हो जाती है। व्हाट इज कोलोडॉन? कोलोडियन कोलोडल अलग वर्ड है। कोलोडियन solution. It is a 4% solution of nitrocellulose in a mixture of alcohol and ether. इतने सारे properties हो गए। Colloidal state, colloidal solution have some properties similar to the true solution and some to suspension, and some properties are different. Classification of colloidal system based on the physical state of DP and DM. मतलब हम classification कर रहे हैं colloidal system की depending on the physical state of DP and DM. 8 types of system are possible. A gas mixed with another gas forms a homogeneous mixture and not a colloidal solution. तो वो possibility बस हमने discard कर दिया। क्या हमारे पास कितने state है? Solid, liquid, gas, 3 state है। Out of 3 we have to choose 2. 2 choose करने पड़ेंगे, लेकिन दोनों मतलब सिर्फ सिलेक्शन नहीं करनी है, उसकी ऑर्डर हम रख सकते हैं। सॉलिड लिक्विड, लिक्विड सॉलिड, दोनों अलग अलग कंसीडर होंगे, तो परम्यूटेशन लगेगी यहाँ पे। टोटल आपकी सॉलिड सॉलिड, सॉलिड लिक्विड, सॉलिड गैस, लिक्विड सॉलिड, लिक्विड लिक्विड, लिक्विड गैस, गैस सॉलिड, गैस लिक्विड, पर गैस गैस नहीं है, because gas will form homogeneous mixture, they will never form colloidal solution. तो लिखा है learn all the example from NCERT. यहाँ पे जो स्पेस छोड़ा हुआ है, स्पेस नहीं लिखा है, सब लिखे नहीं है। ट्राई टू फिल अप, इसी बहाने से एनसीईआरटी से एग्जांपल देखेंगे और वो डायरेक्टली पूछ लेंगे चीज इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट। तो लिक्विड सॉलिड, लिक्विड डीपी, सॉलिड डीएम, मिल्क लिक्विड लिक्विड, फॉग लिक्विड गैस। एग्जांपल्स डायरेक्टली पूछ लेंगे आपको। बेस्ड ऑन इंटरेक्शन और एफिनिटी बिटवीन
DM and DP. लायोफिलिक कोलॉइड, लायोफोबिक कोलॉइड. फिलिक का मतलब क्या होता है? अट्रैक्शन. फोबिक का मतलब होता है रिपल्शन. तो लायोफिलिक मतलब क्या हुआ? जिसमें DP, dispersed phase, is having high affinity towards DM, dispersion medium. लायोफोबिक में क्या होगा? Dispersed phase has phobia, has repulsion from what? DM. तो DM में रहना नहीं चाहेगा पार्टिकल्स. लायोफोबिक कोलॉइड्स में. लायोफिलिक में बिल्कुल आराम से रहना चाहेगा. तो किसको प्रिपेयर करना मुश्किल है? लायोफिलिक कोलॉइड को या लायोफोबिक कोलॉइड को? रखना है मुझे, लेकिन DP पार्टिकल को DM पार्टिकल में रखना है. लायोफिलिक इज व्हाट? DP is highly attractive towards DM, but लायोफोबिक में DP is repelled, या they have very less interaction between DM and DP. तो किसको प्रिपेयर करना मुश्किल होगा? डेफिनेटली लायोफोबिक को, क्योंकि वो रहना नहीं चाहेगा. हेलो, क्लियर है सब लोग? यस. हाँ, रिस्पॉन्ड कर दीजिए बेटा. लगता है हैंग हो जाता है स्क्रीन. ध्यान को बस वही रहता है. और नहीं क्लियर है तो भी ठीक है, वो बता दीजिए, वो पॉइंट डिस्कस कर लेंगे. लायोफिलिक हैविंग ग्रेट अफिनिटी बिटवीन DP एंड DM. इफ DM इज वाटर, तो नाम क्या देंगे? हाइड्रोफिलिक. सिंपल. If lyophilic colloid, in lyophilic colloid system, the DP doesn't easily get precipitated and the system is quite stable. क्योंकि वो दोनों में रहना चाहते हैं. If DM of lyophilic is evaporated and then it is again reconverted into lyophilic colloid system by mixing, and it is reversible in nature. मतलब आप अगर एक लिक्विड को हटा देते हैं, फिर से मिला देते हैं, DP DM को मिला देते हैं, तो फिर से बन जाएगा, क्योंकि ज्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी है. इट इज रिवर्सिबल इन नेचर, क्योंकि आप फिर से बना सकते हैं बड़े आसानी से. पर लायोफोबिक बड़ी मुश्किल से बनता ही है, तो उसको अलग कर देंगे आप तो फिर से बनाना बहुत मुश्किल होगा, तो उसको इरिवर्सिबल बोल दिया. डू नॉट हैव एनी अपरेंट एफिनिटी बिटवीन DP एंड DM. तो लायोफिलिक का मतलब, जब DP का मतलब सॉल्यूट जैसा, DM मतलब सॉल्वेंट जैसा डिसॉल्व किया, तो डिसॉल्व ही नहीं होगा, मतलब प्रॉपर्ली इंटरेक्शन होगी ही नहीं, तो बनाना बहुत मुश्किल होगा. तो स्पेशल मेथड यूज करते हैं लायोफोबिक के लिए. इफ DM इज वाटर, इट इज हाइड्रोफोबिक. पार्टिकल्स ऑफ DP can be easily precipitated by addition of small amount of electrolyte, by heating, by shaking. Once the colloidal system is precipitated, it can't be easily brought back to the colloidal state by just mixing. Mixing से नहीं आता, mixing से लायोफिलिक आते हैं. Once the colloidal system is precipitated, it can't be easily brought back to the colloidal state by just mixing, and these are irreversible. Lyophobic salts include salts of metal. मेटल मतलब इनऑर्गेनिक की बात कर रहा है. देयर इनसॉल्युबल सॉल्ट्स लाइक सल्फाइड्स, ऑक्साइड्स, सब इनऑर्गेनिक की बात कर रहा है. वहां पे गम, जेलेटिन, स्टार्च, प्रोटीन था. तो जनरली ऑर्गेनिक वाले क्या होते हैं? जनरली लायोफिलिक होते हैं, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पानी के साथ मिल जाएगा. और लायोफिलिक, लायोफोबिक में इनऑर्गेनिक ऑक्साइड, सल्फाइड्स हो जाते हैं, जो पानी में डिसॉल्व ढंग से नहीं होते. मेटल सोल, मेटल डिसॉल्व नहीं होगा, उनके पार्टिकल्स डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे अनइवन फॉर्म में. Indirect methods are used for preparation of lyophobic colloid. लायोफोबिक को मुझे बनाने के लिए अलग अलग मेथड यूज करने पड़ेंगे. कंपैरिजन ऑफ प्रॉपर्टीज बिटवीन लायोफिलिक एंड लायोफोबिक, प्लीज गो थ्रू इट. पूरा थियोरेटिकल टॉपिक है. मंडे से आइसोमेरिज्म स्टार्ट कर लेंगे. मंडे से जो बचे रहेंगे धीरे धीरे करते भी जाएंगे इसको. ये पढ़िए आप लोग, रीड कीजिए पहले एक बार.
देख लेते हैं एक बार। एफिनिटी बिटवीन डीपी एंड डीएम, लाइफोफिलिक में स्ट्रॉन्ग, लाइफोबिक में बिल्कुल नहीं होता। स्टेबिलिटी वेरी स्टेबल, जनरली अनस्टेबल। प्रिपरेशन इजीली प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग, बिकॉज वो खुद से स्टेबलाइज हो जाते हैं। डिफिकल्ट टू प्रिपेयर, ऑलवेज प्रिपेयर्ड बाय स्पेशल मेथड्स, स्टेबलाइजर्स आर रिक्वायर्ड। नेचर रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल। चार्ज, डीपी पार्टिकल्स मे और मे नॉट बी चार्ज्ड। तो लाइफोफिलिक में चार्ज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट अब यह सबसे इंपॉर्टेंट, डीपी पार्टिकल्स आर चार्ज, पॉजिटिव और नेगेटिव। चार्ज इज रीजन फॉर स्टेबिलिटी ऑफ लाइफोबिक पार्टिकल्स। अब खुद सोचो, ये मुझे डीएम है, डीएम इसमें डीपी के पार्टिकल्स है। डीपी पार्टिकल्स के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज है तो आपस में रिपेल करेंगे, तो कभी भी वो प्रेसिपिटेट नहीं बनने देगा, स्टोर है और होल्ड करने की कोशिश करेगा, स्टेबल रहेगा। तो अगर डीपी के पार्टिकल्स के ऊपर चार्जेस हैं, सिमिलर चार्जेस हैं, तो वो आपस में रिपेल करेंगे और स्टेबल बनने की कोशिश करेंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कि डीपी पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज होती है लाइफोबिक में। एक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज रिक्वायर्ड टू कॉज कोगुलेशन। कोगुलेशन का मतलब होता है प्रेसिपिटेशन। सॉल्यूट पार्टिकल्स को, सारे सॉलिड पार्टिकल्स को आप कलेक्ट कर लें और सेटल डाउन कर लें, वही आपका प्रेसिपिटेशन होता है। कोगुलेशन उसी वर्ड को कहते हैं, कोगुलेट करना, ब्लड कोगुलेट कर जाना, मतलब जमा हो जाना। तो लार्ज amount of electrolyte is required to cause coagulation because stability ज्यादा होती है। Small amount of electrolyte is sufficient to cause coagulation or precipitation. Type, organic colloids are generally, यहाँ पे inorganic colloids are generally lyophobic. Visibility, particles can't be really detected by microscope. Particles are easily detected by ultra microscope. Tyndall effect, less distinct, more distinct. Solvation, dp particles are heavily solvated. Stability उसकी ज्यादा है because of interaction है, तो highly solvated है, not solvated. Viscosity of lyophilic soil is much higher than pure DM. Viscosity of lyophobic soil is nearly same as pure DM. Surface tension is usually less than that of pure DM, nearly same as pure DM. Migration electric field, dp particles may or may not be migrated in electric field, but dp particles migrate either towards cathode or anode depending on the charge. तो यहाँ पे चार्ज होती है, तो अगर डीपी पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, इट विल अट्रैक्टेड टुवर्ड्स नेगेटिव इलेक्ट्रोड, दैट इज कैथोड। अगर नेगेटिव चार्ज है तो वो कैनोड की तरफ जाएगा। एग्जांपल्स, सोल्स ऑफ गम, जेलेटिन प्रोटीन, मेटल सोल, सल्फाइड सोल। एग्जांपल दे दिया बस याद करने के लिए। आप क्या करना, थोड़ा पढ़ के रखना, और यहाँ तक नहीं, रहने दीजिए, मत पढ़िए, हमारे साथ ही पढ़िएगा। पेज नंबर 6 तक, जहां तक हमने डिस्कस किया वहीं तक पढ़िएगा, ठीक है नितिन? पेज नंबर 6 तक कंप्लीट कीजिएगा। ओके सर। ठीक ठीक, कल भी देखते हैं कितना हो सकता है, कल डिस्कशन करके जितना हो सकता है कर लेंगे, और मंडे से विल स्टार्ट आइसोमेरिज्म पार्ट। इस तो आपको नेक्स्ट वीक पूरा टाइम मिलेगा केमिकल काइनेटिक्स की पेंडिंग एक्सरसाइज, आयनिक की पेंडिंग एक्सरसाइज, और फिर सरफेस केमिस्ट्री की तो बुकलेट एक दिन में बन जाएगी, बनाने की कोशिश कीजिएगा। क्योंकि आइसोमेरिज्म में आपको मैं स्टार्टिंग में कोई काम नहीं दूंगा, जो क्लास में होगा थोड़ा बहुत वही 1-2 क्वेश्चंस बच जाएंगे, तो आप घर पे ट्राई कर लेना, ठीक है ना? यस ठीक, चलिए, ओके, थैंक यू सर, बाय सर। थैंक यू।